Good evening, students. So far, we have completed our biology and the first chapter of chemistry, that is chemical equation and reactions, also we have completed. Now, let's start the next chapter, which is chapter 2, acid, bases, and salts. This is the second chapter of your NCERT, and it is comprises of like 4 to 5 marks questions are expected from this chapter. Okay, as the name indicates, this chapter is we are going to study about what is acid, what is base, and what are their reactions, how you can identify whether the substance is acid or base, and what are the different types of salts. Okay, so let's start with the very first brief introduction of acids and as well as the difference between both of them. Acid and base. The substances, either they are in the acid and the bases, how you will identify them. The acid basically the sour in taste. Khatta hota hai acid. Okay. And the pH of acid is between 1 to 6. Right? Bases, they are bitter in taste and their pH is from 8 to 14. One more difference is there that the bases are soapy in touch. Acids, they don't have any kind of this property, but bases are soapy in touch. And other than that, there is one more thing. By litmus paper test, we can identify whether the substance is acid or base. So acids are converting blue litmus to red and bases are converting red litmus to blue. These are the basic difference between acids and bases. So once again recall it. Acids are sour in taste and they are bitter in taste. The pH range is between 0 to 6. The pH range between 8 to 14. And it turns blue to red litmus paper and this is red to blue. So this is the major difference between acids and base. Okay, sometime you are able to taste a substance. Suppose two substances have been given and you need to identify whether the substance is acidic or basic in nature. So it is not necessary every time you are able to taste that substance. Maybe it can harmful for you as well. So for that we have a certain kind of substance which can give us an idea and confirmation whether the substance is having acidity or basicity. And this is done by indicators. Indicators. So indicators are the substance which will give an idea of the type of the substance which was given to you, whether they are acidic or whether they are basic in nature. Okay, indicators ये काम करते हैं. अब indicators जो हैं they are natural indicators, even they are artificial indicator. If we talk about the natural indicator, the indicator which we are getting from the nature. Nature में already present होता है and these are the substance we extract and then they will work to identify the acidity and basicity of the substance. Other than that, there is an artificial indicators. Artificial indicators, the indicators which we are preparing in the laboratory as per our requirement. Natural indicator, very simple indicator is are coming from lichen and known as litmus. This is the very first natural indicator which we are going to study, that is litmus, and it is coming from lichen. Now lichen, what is lichen? The symbiotic relationship between algae and fungi. दोनों के बीच में symbiotic relationship होता है और उससे जो plant बनता है which is known as lichen, and from where we are getting litmus. Now there are two types of litmus, blue litmus and red litmus. The blue litmus, if it is turning into red, that means a substance is acidic in nature. And if a red litmus is converting into blue, then a substance is basic in nature. Then a substance is basic in nature. So this is how litmus is working. Okay.
नाउ नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्मरिक, हल्दी, है ना, ऐड पढ़ते हो ना, दाग अच्छे होते हैं, तो दाग किसके होते हैं? हल्दी के होते हैं। और हल्दी के दाग जब लगते हैं कपड़ों पे तो मम्मा डांटती है। क्यों डांटती है? बिकॉज टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर when it reacts with acid. We all know what is the color of turmeric. टर्मरिक का कलर होता है येलो, ओके। और जब ये टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स येलो ओनली। बट हम इसको जब डिटर्जेंट से साफ करते हैं जिसके अंदर होता है बेस, हम उसको डिटर्जेंट बार से साफ करते हैं वो कपड़ा, तो उसमें क्या होता है? बेस। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है तो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन। So if this is the change in color in turmeric, we got to know that the substance is basic in nature. If there is no change, that means the substance is acidic in nature. चलिए अब नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं, वो होता है रेड कैबेज। अब रेड कैबेज इंडिकेटर है ऑब्वियसली, तो कहाँ से मिलेगा? रेड कैबेज से ही मिलेगा। और रेड कैबेज करेगा क्या? कलर बताएगा हमें। तो यूजुअली जो रेड कैबेज का कलर होता है दैट इज पर्पल। क्या कलर होता है? पर्पल। और जब ये एसिड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो देन इट टर्न्स इनटू रेड कलर एंड विद बेस इट विल गिव्स ग्रीन कलर। So by these are few examples of natural indicators by which you can get an idea and you can easily understand whether the substance putting in front of you, whether they are acidic or basic in nature. Okay? तो कौन कौन से पढ़े हमने? पहला पढ़ा हमने लिटमस, सेकेंड वन इज टर्मरिक एंड द थर्ड वन इज रेड कैबेज। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे चाइना रोज, वो भी काम करता है नेचुरल इंडिकेटर्स का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में जो बहुत कॉमन इंडिकेटर है दैट इज फिनोल्फ्थेलिन। सो फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर यूजुअली इट इज कलरलेस। ठीक है, 11th में आओगे ना, जब साइंस लोगे 11th में तो टाइट्रेशन करोगे सबसे पहले लैब में, उस टाइम तुम्हें सबसे पहले फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर ही मिलेगा, है ना। तो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर इट इज यूजुअली इट इज कलरलेस, बट जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देयर इज नो चेंज इन कलर एंड विद बेस इट गिव्स लाइट येलो कलर। कौन सा कलर देता है ये? सॉरी, लाइट येलो नहीं, लाइट पिंक। येलो, येलो कैसे याद आ गया मुझे? इट विल गिव अ लाइट पिंक कलर। ओके, फिनोल्फ्थेलिन के अलावा एक और इंडिकेटर की हम बात करेंगे विच इज मिथाइल ऑरेंज। ये इंडिकेटर जो है ये भी हमारा कौन सा इंडिकेटर है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और ये मिथाइल ऑरेंज जो है दिस इज ऑल्सो ऑरेंज इन कलर एंड it will give different color in different solution. Acid it will give red color and base it will give yellow color. So these are the few indicators which are natural as well as artificial. अब एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, खुशबू से पता पड़ता है। और ये इंडिकेटर्स हैं, दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स व्हिच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द सब्सटेंस व्हाट काइंड ऑफ इट बाय ओनली स्मेल। इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है और ये इंडिकेटर जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी स्मेल में चेंज आता है एंड बाय दैट यू कैन आइडेंटिफाई ओके ये सब्सटेंस रखा है, ये एसिड है, ये सब्सटेंस रखा है, ये बेस है। ओके, olfactory indicators में basically we are going to study only clove and vanilla. ठीक है, वेनिला एसेंस। मुंह में पानी आया, केक में होता है, केक में होता है वेनिला एसेंस, वो एक तरह का इंडिकेटर है, olfactory इंडिकेटर। दोनों इंडिकेटर एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देते हैं अपनी स्मेल में। ठीक है,
जैसे क्लोव की पंजेंट स्मेल होती है हमें पता पड़ता है, वनीला की फ्रूटी सी स्मेल होती है, वी आइडेंटिफाई। तो देर इज नो चेंज व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड। बट जब हम वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। देर विल बी नो स्मेल, so smell will disappear when they will react with base. So these are the olfactory indicators. ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमने बात कर ली एसिड्स और बेसिस की, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ एसिड तो पता होने चाहिए कि एसिड्स कहाँ से मिल रहे हैं, बेस कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एसिड्स आर, द सोर्सेज ऑफ एसिड्स आर डिफरेंट। हम डिफरेंट तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एसिड कैन बी डिवाइडेड on the basis of source from where we are getting, okay, on the basis of strength, okay, and on the basis of concentration. इस तरीके से हम एसिड को डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ से मिल रहा है और क्या स्ट्रेंथ है, एज वेल एज क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सोर्स की माने तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। कौन कौन से हो गए? एक हो गए नेचुरल तरीके से जो हमें मिल रहे हैं, विच इज नोन एज मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। यूजुअली मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ओके, एंड ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब मिनरल एसिड्स क्या है? जो हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है, नेचुरली जो मिनरल्स प्रेजेंट है उससे हमें जो एसिड बन रहा है उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो ऑलरेडी हमारी चीज़ों में प्रेजेंट है, लाइक कर्ड, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। स्पिनच के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ओके। और आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो दीज आर द एसिड्स। एंड सिट्रिक एसिड होता है लेमन्स में, सिट्रस फूड्स में। तो ये जो एसिड्स होते हैं जो हमारे नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो हमें मिनरल से मिलते हैं, लाइक मैग्नीशियम से मिल गया और कोई मिनरल प्रेजेंट है उससे हमें जो मिल गया वो मिनरल एसिड। तो ये यूजुअली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये यूजुअली वीक एसिड होते हैं। अब बेसिस ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड देखो कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, वाटर में पूरा डिसॉल्व हो रहा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन वो दे रहा है, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो है हमारा वो क्या होगा? जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता और वो उतने हमें आयन भी नहीं देता, तो वो बोलते हैं हमें वीक एसिड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक होता है कॉन्सेंट्रेट एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। एक होता है कॉन्सेंट्रेट एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। अब देखो, हम लैब में जाते हैं, आपने भी अपने स्कूल में लैब देखी होगी, केमिस्ट्री लैब। अब उसमें ऐसी बॉटल्स रखी रहती है रिएजेंट्स की। अब किसी में लिख रखा होता है डाइल्यूट HCl और किसी में लिखा होता है कॉन्सेंट्रेट HCl। है तो HCl ही, पर एक में कॉन्सेंट्रेट लिखा है एक में डाइल्यूट लिखा है। ये क्या चक्कर है भैया? है तो HCl ही। तो वो उसको ये होता है कि जिसमें पानी में जब हम सोल्यूशन बनाते हैं एसिड का, वो भी मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो जब वो बनाते हैं तो जब वाटर की क्वांटिटी एसिड से ज़्यादा होती है, मीन्स एसिड इज लेस एंड मोर वाटर इज देयर, देन इट इज नोन एज अ डाइल्यूट एसिड। उसको हम क्या बोल देते हैं? डाइल्यूट एसिड। जब हमारी वाटर की क्वांटिटी क्या हो? ज़्यादा हो एंड एसिड की क्वांटिटी क्या हो? लेस हो, तो देन इट विल बी अ डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेट उल्टा हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम, एंड एसिड क्वांटिटी इज मोर। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट एसिड।
So as per the source, strength and concentration, acids are these type. Please note it down, then we move further. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। अब एसिड की क्या रिएक्शन होती है, डिफरेंट केमिकल्स के साथ में हम क्या क्या रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन व्हाट वी आर गेटिंग अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज द कॉमन रिएक्शन, मीन्स दिस इज अ जनरल रिएक्शन। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फिक्स है, एक सॉल्ट होगा और एक हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। अब एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे HCl एसिड और यहाँ पे मैंने मेटल लिया जिंक। ठीक है, तो हमें सॉल्ट क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता पड़ेगा? सो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, आई होप आपको याद होगा। ऐसा सेटअप बना रखा है, वन सेटअप हैज़ बीन गिवन। एक फ्लास्क है और फ्लास्क में हम एक एसिड का सोल्यूशन है और उसमें हमने मेटल डाला है, मेटल हैज़ बीन पोर्ड एंड यहाँ से एक फनल हमने ली है और उस फनल को यहाँ पे रख रखा है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द गैस विल कम आउट। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं ये। ठीक है, तो आप लोगों के चैप्टर में ये एक डायग्राम है विच विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे होता है। तो अब हाइड्रोजन गैस का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन क्या आता है, सो एंड सो इज रिएक्ट एंड द गैस इज लिबरेटेड, हाउ यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द गैस इट इज। ओके, तो जब हाइड्रोजन गैस का जो पर्टिकुलर हमारा तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, दैट इज व्हाट, कि हम जब इसको बर्निंग कैंडल का पास में लेके जाते हैं तो इट विल ऑलवेज बर्न विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड मीन पट 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 पट। ठीक है, जैसे ये होगा वैसे ही हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, यस दिस इज एन हाइड्रोजन गैस एंड द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। सो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। व्हाट इज द जनरल रिएक्शन, इट विल गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिया, HCl जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, ये हमारा हो गया सॉल्ट और ये हो गई हमारी गैस। तो गैस जो मिलती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो एसिड की है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनेट होता क्या है ना। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज कार्बोनेट, तभी तो आगे कर पाओगे। कार्बोनेट इज CO3, ये वाला आयन होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3। अब मैं यदि इसको बोल रही हूँ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके आगे मेटल लगा दो, ठीक है। सिंपल, सोडियम एक मेटल है तो मैंने क्या लगाया? सोडियम का Na2CO3। ओके, नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये बन गया हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बन गया मेटल कार्बोनेट। कैल्शियम भी लगा दो, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। यहाँ पे भी बना सकते हो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो HCO3 दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 इज कार्बोनेट। उसको मेटल के साथ एसोसिएट करोगे तो मेटल कार्बोनेट, उसको और हाइड्रोजन कार्बन को मेटल के साथ एसोसिएट करोगे तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी जनरल रिएक्शन जो होती है वो ये होती है कि मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक मिलेगा हमें सॉल्ट, और हमें मिलेगा वाटर, और हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, मींस दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब सपोज मैं ले रही हूँ CaCO3, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने एसिड सपोज HCl के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? एक मिलेगा सॉल्ट दैट इज CaCl2, और मुझे मिलेगा वाटर, और उसके अलावा मुझे मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब याद करो फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कि जब गैस निकलती है तो हम ये वाला साउंड बनाते हैं, है ना, ये वाला सिंबल बनाते हैं, उससे ही हमें पता पड़ता है। और हम इसके बीच में हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज लिक्विड, ओके, एंड दिस इज सॉल्ट इज सॉलिड, एक्वस सॉल्ट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमें जनरल रिएक्शन है, कोई भी मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते। सपोज मैंने लिया NaHCO3, यही ले लेते हैं HCl3, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, क्या मिला मुझे बताइए? एक NaCl मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐसे बता देंगे। सो दीज आर द जनरल रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या वो होता है, मींस कैसा टेस्ट होता है। तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों मिल्की होता है बताया था मैंने, याद करिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम एंड विच इज कलरलेस, जब इसको हम पास करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाइट इन कलर, और उससे क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की होता है। बट जब मैं इसको ओवर पास करवाऊंगी इन एक्सेस अमाउंट तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, और उसके बनते ही वापस ये जो वाइट कलर का बना था अगेन इट विल बिकम कलरलेस। 2013 का जो क्वेश्चन CBSE का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन इफ यू विल पास कार्बन डाइऑक्साइड इन अ लिमिटेड अमाउंट टू लाइम वाटर, and what will happen if you pass in excess amount. So this will be the answer of that question. Okay, so this is the reaction between acids and metal carbonate or metal hydrogen carbonate. अब नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड की जब रिएक्शन हम एसिड के साथ करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर।
अब ये आपको पता होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक होगा तो मीन्स क्या करेगा ये, बेसिक होते ही रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस में। सो दिस इज ऑल्सो द थर्ड रिएक्शन विच इज मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो और उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। अब मेटल ऑक्साइड आप ये भी लिख सकते हो MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड HCl ही ले लो, क्या मिलेगा आपको MgCl2, दिस इज योर सॉल्ट, और क्या बन रहा है ये वाला H2O, ये H2O इधर से आया, ये MgCl2 इधर से आया, ठीक है, और यहाँ पे बन गया वाटर। तो दिस इज मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन करवाई और हमें रिजल्ट मिल गया विच इज सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एक बहुत अच्छी रिएक्शन है विच इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मैं एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या करता है, एसिड बेस के इफेक्ट को नलिफाई करेगा, बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करेगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ न्यूट्रल वन, मींस नीदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेस, दोनों चीजें नहीं होगी उसमें। तो क्या होगा, एसिड और बेस मैंने रिएक्शन करवाई तो मुझे मिला सॉल्ट और मिला वाटर। अब ये सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल, मींस ये लिटमस पेपर, यदि रेड लिटमस पेपर भी लगाऊंगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर लगाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज a neutralization reaction. Why neutralization reaction? Because this acid is nullifying the effect of base and this base is nullifying the effect of acid, and both of them are reacting, and what we are getting, we are getting a salt and water. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हम सबको पता है, अभी याद आ जाएगा। मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, एसिड ले लो HCl और बेस ले लो NaOH, ठीक है। एक छोटी सी टिप दे रही हूँ यहाँ पे, देखो बेस को आइडेंटिफाई करना हो ना तो कोशिश करो कि जहाँ अधिकतर जो बेसेस होते हैं उसमें OH आयन होता है, दिस इज OH आयन, तो इससे यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज एन बेस। तो मैंने क्या लिया, एसिड लिया HCl, अब HCl को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ एसिड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे हम, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, देखो ये मेरे को आयन फॉर्म में टूट जाएगा, दिख रहा है, कल भी मैंने सिखाया था। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और सेम आयंस क्या रिपेल करेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, NaCl, ये दोनों, और ये आपस में मिलके क्या बना रहा है, H2O। अब NaCl इज सोडियम क्लोराइड and it is also known as common salt and which is neutral in nature। क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है नेचर में, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पढ़ा था, तो उसमें इसमें कुछ कंडीशंस होती है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन करवाई तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तो लिया पर मैंने फिर वीक बेस ले लिया तो यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, जो सॉल्ट मिलेगा वो स्लाइटली क्या होगा, एसिडिक। तो यहाँ जो मुझे जो मिल रहा है दैट इज एसिडिक सॉल्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, मैंने क्या लिया, मैंने वीक एसिड लिया
और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब यहाँ पे जो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट सॉल्ट वो स्लाइटली बेसिक होगा, तो उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। और जब मैं वीक एसिड प्लस वीक बेस ही लूंगी तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी कंडीशंस पता होनी चाहिए। Although neutralization is what? When acid react with base, both nullify each other's property, each other's effect, and which is known as neutralization reaction. और उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। बट ये कुछ कंडीशंस है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल, वीक एसिड वीक बेस होंगे तो न्यूट्रल, बट यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो स्लाइटली एसिडिक हमें सॉल्ट मिलेगा, और उसका यदि उल्टा करेंगे तो हमें स्लाइटली बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी में ये दे रखा है, व्हाट विल हैपन इफ एसिड और बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करें। ठीक है, व्हेन वी डिसॉल्व एसिड और बेस इन वाटर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नई डेफिनेशन है एसिड और बेस की, अब तक हम ये पढ़ रहे थे ये सॉर होता है ये बिटर होता है, पर अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये होता क्या है। ठीक है, तो जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। सो अ सब्सटेंस विच गिव अस हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज एसिड। ये कौन सा ना आयन है? हाइड्रोनियम आयन। ये बनता है जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और बेस को जब करते हैं तब क्या बनता है? बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। So this is the thing by which we can also identify whether the substance is acidic or basic. तो एसिड तो हमें कौन सा आयन देता है? हाइड्रोनियम आयन, और बेस हमें देता है हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, अब दोनों में क्या कॉमन हो गया? आयन्स बन रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे? अब ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन एसिड एंड बेस। तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन एसिड एंड बेस? देखो, पहली वाली जो चीज हमने देखी, व्हेन वी आर गोइंग टू डिसॉल्व देम इन वाटर they will be giving ions. So acid will be given H3O plus ion which is known as hydronium ion, and the base will be given OH minus ion which is known as hydroxyl ion. तो ये तो हमें पता पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉमन थिंग ये हो गई कि हमें आयन होगा। अब दूसरा, जब आयन है और अपन जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी ये दोनों करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज इनसे आयन फॉर्म हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कॉमन है। क्या है? दे बोथ कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, एंड व्हाइल डिसॉल्विंग इन वाटर दे आर कन्वर्टिंग इनटू आयन। एसिड्स आर कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोनियम आयन, and bases are converting into, and they are giving us hydroxyl ion. So these are the things which are common into this. Okay, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मैंने आपको बताया था डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड की वाटर और एसिड को मिक्स करना कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका ये है, वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं या एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। आप बोलो कि क्या फर्क पड़ता है ना? शरबत में पानी मिलाऊं या पानी में शरबत मिलाऊं, होना तो इसे मीठा ही है, क्या फर्क पड़ता है? पर ये शरबत नहीं है, ये है एसिड। ओके, यदि आप पानी को एसिड में डालोगे
तो इट विल बी अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उससे क्या हो सकता है, जब आप उसको मिक्स करोगे तो एकदम से वो बर्न भी हो सकता है, वो जिस वेसल्स में आप मिक्स कर रहे हो वो फूट भी सकती है, और आपको आप बर्न भी हो सकते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन दो तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ओके, हीट के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या होती है यहाँ बताती हूँ आपको। तो हीट के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है एक तो एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट क्या बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऑन द रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। आप कोई रिएक्शन करवाई टेस्ट ट्यूब में, पहले आपने टेस्ट ट्यूब टच किया, इट वाज इन नॉर्मल टेम्परेचर, बट रिएक्शन के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ गया टेस्ट ट्यूब का तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही उल्टा, यदि टेस्ट ट्यूब आपकी लिटिल लोअर टेम्परेचर की तरफ हो गई, स्लाइटली कोल्ड हो गई, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इट कैन बर्न यू एंड इट कैन ब्रेक द वेसल्स एज वेल। तो हमेशा किस में मिलाते हैं? एसिड को वाटर में मिलाते हैं। दिस इज रॉन्ग। हमेशा एसिड को वाटर में मिलाते हैं। कैसे? दिस इज वाटर, और एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाते हैं विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। ऐसे एसिड डालेंगे, ठीक है, स्टिरिंग मीन्स एक ग्लास रोड लेंगे और उससे इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐसे स्टिर करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। तो स्टिरिंग से क्या होगा? इतनी हीट इवॉल्व नहीं होगी और एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ dilution occur. It always acid has to mix with water with continuous stirring. We do not mix water in acid because it is an highly exothermic reaction and it may cause harm to you. Note down this. Okay. Now next start is, next we are going to start, that is known as pH indicator. pH scale, है ना? प्रोटीन्स पे काम करता है ये, है ना? लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, उस पे काम करता है। एंड इट इज एन इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर विच गिव यू an idea and which will give a correct thing that whether the acid or base it is there. There is a pH scale for that. ठीक है, एक pH scale होता है। ओके, अब ये pH scale जो है वो शुरू होता है 0 से 14 तक, और इसका मिड पॉइंट होता है विच इज 7। 7 को हम जो बोलते हैं दैट इज न्यूट्रल। 7 पॉइंट जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेस, विच इज यूजुअली अ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है। अब देखो ये वाली जो रेंज है, दिस वन, इट इज एसिडिक रेंज, बट इसमें भी वेरिएशन है। जब हम यहां से, मीन्स जो एसिड की रेंज टुवर्ड्स 0, ये वाला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक 1 2 3। ओके, और जो 4 से 7 की तरफ हम जाते हैं, 5 6, दीज आर नोन एज वीक एसिड। जैसे HCl है, हमारे स्टमक का HCl है, उसकी पीएच क्या है? 1 1.5, 1 से 1.5। सो दिस इज हाईली एसिडिक इन नेचर, बहुत एसिडिक होता है वो। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो रेंज है 7 से अबोव वाली टिल 14, इट इज बेसिक रेंज, बेस की रेंज है। तो जब इसमें उल्टा हो जाएगा, जब ये 7 से लेकर लाइक 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये वाली जो रेंज है इस तरफ जाती हुई, ये हो जाएगा हमारा वीक बेस। और यहाँ वाली जो रेंज है 11 हुई, 12 हुई, 13 हुई, जो इधर की तरफ जा रही है, that becomes a strong base.
So this is your pH scale, and by using this you can identify कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड है। ठीक है, तो ये है पीएच स्केल। इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक, मैंने आपको बताया। तो टुवर्ड्स 0 की तरफ जो एसिड्स आते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, टुवर्ड्स 7 की तरफ जो एसिड्स आते हैं वो वीक, और बेसिस का उल्टा हो जाता है। बेसिस क्या करते हैं, टुवर्ड्स कहाँ जाते हैं, 7 की तरफ, वो जो है वो होंगे वीक, और जो 14 की तरफ जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज इन पीएच स्ट्रिप और पीएच स्केल विच इज ऑल्सो नोन एज पीएच इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होता है, वो क्या करता है, सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। आपके एनसीईआरटी में एक स्ट्रिप है, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। रेड मीन्स हाईली एसिडिक, फिर ऑरेंज जो होता है लेस एसिडिक, फिर ब्लू जो होता है हाईली बेस, लाइट ब्लू वीक बेस। सो दिस इज अ स्ट्रिप विच इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर विच विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब पीएच का यूज क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में, बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, पेट में कुछ गड़बड़ खाया, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ खाया तो क्या बनता है, एसिड। हमारे बोलते हैं ना, कभी खाली पेट रह जाते हैं तो अपन बोलते हैं अरे एसिडिटी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, अब वो एसिडिटी को ठीक करने के लिए आप क्या लेते हैं, आप जेलिसिल ले लेते हैं, इनो पी लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, और भी कुछ करते हैं, सिरप ले लेते हैं, कुछ लेते हैं। तो वो करता क्या है, जो आप जेलुसिल लेते हैं, एंटी एसिड टैबलेट लेते हैं, उसके अंदर होता है बेस, और एसिडिटी में आपके स्टमक में क्या बन रहा है, एसिड। सो वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। जैसे ही नलीफाई करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड यू फील गुड। तो हमारे क्या एसिडिटी में जो काम होता है वो हम काम करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हम लेते हैं एसिडिटी में। तो ये सब जो क्या है, ये बेस है, आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है, आप बेस टैबलेट ले रहे हो, वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के एसिड को नलीफाई कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है एंड यू फील रिलीफ। एक और होता है एंड स्टिंग, बी स्टिंग। ठीक है, हमें बी ने काटा, क्या करते हैं, लोहा रगड़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो बी वाला जो एसिड होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, उसने स्टिंग किया, फॉर्मिक एसिड आया। अब इसमें हम लोशन लगाएंगे विच इज बेस इन नेचर, बेस और लोशन लगा एंड आपकी जो रेडनेस हुई, आपकी इचिंग हुई, वो थोड़ी क्या होगी, कंट्रोल होगी, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, वापस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो ऐसे फर्टिलाइज यूज़ करते हैं जो उसके एसिडिटी को कम करके उसको नॉर्मल करे। यदि बहुत बेस है, बहुत बेसिसिटी है, तो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिसमें एसिड हो। तो इस तरीके से हम सॉइल का भी टेक्सचर जो है वो मेंटेन करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। अब एक और चीज़ है, आपके टीथ का टूथ डिके हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, आपकी क्या होती है, आपकी जो अंदर की माउथ की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। और यदि वो एसिडिटी 3 से कम हो जाए, अब 3 का स्केल है तो समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ से, तो टूथ डिके का रीज़न भी यही है। आप जब कुछ खाते हैं और फ्लॉस नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट डू प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर माउथ, तो आपके माउथ में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। और एसिडिटी यदि 3 से कम हुई, 3 से ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा मतलब इस तरफ, इस रेंज में, तो अंदर जो होंगे वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस यू गॉट टूथ डिके। एंड फिर हम कैसा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, विच इज़ हैविंग बेस। तो जब वो टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं तो हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और अगेन हमारे माउथ का पीएच जो होता है वो मेंटेन होता है। सो दैट इज़ वाई डॉक्टर एडवाइज्ड ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। दिन में 2 बार यू हैव टू ब्रश योर टीथ, तभी जाके ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी आर यूजिंग एसिड्स इन आर pH in our daily life.